Hello everyone, welcome to my channel. So today I have invited Ananya and in this video we will talk everything about GATE preparation strategy. So first of all, I want to say congratulations Ananya for securing All India rank 90. This is really a great achievement. And I also want to say that he is also my college junior, my own college junior. So I just want to congratulate. I am feeling very happy for you. So yeah, Thank you. Ananya, thank you for accepting my invitation. So could you please give me a quick introduction so that our viewer will get to know about you? Yes, yes. First of all, thank you, Amritanjali Didi, for inviting me here. So, my name is Ananya Mehta. I had secured Year 90 in GATE 2022 in CSE branch, and I am from Site Punjab. I am his college junior, as she explained. Yeah. So Ananya, like achieving AIR 90, like something like under 100 rank is really a great achievement. So could you please share like what was your strategy for GATE preparation, like when you have started and what path you have chosen, something like roadmap for GATE preparation? So, first of all, I just give it a suggestion that you should start very early, as soon as possible. You think of GATE. So, I started my preparation when I was in my third semester. Yes, so because one of my relative, the Akash Bhaiya, he also started preparation in 2017 only. And he told me that you should start get preparation. So I started my preparation early very. And so I got sufficient time for preparation. And so, and जैसे कि जब मैंने start करा preparation, so there are 12 subjects, every core subject of computer science branch. So I just started by one. Okay. And after I completed each subject, I do this test series. I joined test series very early stage. My teachers told me that you should join test series very early and you should give as many tests as you can. So uh, जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होते थे, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ मेरा, so then I give the test, get all the questions. It consists of previous IIT questions which asked in the gates. So I complete that and just revise. So there's just three things. There's many iterations of learn, revise, and test series. So by this following, I got 90, year 90. Yeah. One thing I want to note here, as you said that start early, this is not only for GATE, even आपको प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करना है या कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, आपको जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा रहता है। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थर्ड ईयर में आकर के प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर से मतलब सीपीए सब करना स्टार्ट कर दी थी। तो यही है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम मिलेगा। एंड इस टाइम में क्या होगा कि आप अगर जल्दी स्टार्ट करते हो तो आप कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेस फ्री मैनर में कर सकते हो, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगी, आपके पास इनफ टाइम रहेगा। सो एज यू हैव शेयर्ड लाइक यू हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली। सो मैं तो बोलती हूँ कि आप फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर पर एंजॉय करो एंड सेकेंड Yes, yes, सेमेस्टर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। एंड सेकेंड ईयर से तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर ही देना, आइदर फॉर yes. गेट और प्लेसमेंट प्रिपरेशन, जो भी आपको करना है आप कर देना सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट। So Because like I suggest, yes, yes, I suggest a student should start let's use it first year or maybe across third semester or second semester, because in third year we have to give the GATE exam. So the scorecard which generated is valid for 3 years. So it is valid for now, third year, fourth year, and next year also. So this much suggestion start early as soon as possible. yeah। You And will get अगर an कोई edge over other पर्सन, students. यस, एंड Yes, yes. अगर कोई पर्सन ना थर्ड ईयर में अगर अपना गेट कंप्लीट कर लिया, जैसे कि आपने अपना थर्ड ईयर में अपना गेट कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास अभी 1 ईयर इनफ टाइम है, जैसे कि अगर आपको प्लेसमेंट भी लेनी है तो आप प्लेसमेंट का अच्छा प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा हमें अर्ली करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को जीआरई करना होता है एंड जीआरई में भी ना फर्स्ट ईयर में भी जीआरई कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो करते हैं कि नहीं नहीं फोर्थ ईयर में करेंगे, फिफ्थ ईयर में करेंगे, मतलब इस टाइप से वो टाइम को एक्सीड करते रहते हैं। इस टाइम को मतलब इसको क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। और इससे क्या होता है कि एट द एंड वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, बाद में ब्लेम करते हैं कि टाइम नहीं मिला मुझे। टाइम सबके पास बहुत होता है, बस ये होनी चाहिए कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर लो उतना सही रहेगा आपके लिए। तो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी आपसे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं गेट में, अगर आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना है तो सिंपल डीएसए एंड कुछ तीन चार गिन के सब्जेक्ट पे फोकस करनी रहती है, लेकिन गेट के प्रिपरेशन मैं भी स्टार्ट करी थी। एक्चुअली मैं इसी से स्टार्ट करी थी जब मैं थर्ड ईयर में थी। एंड मुझे लगता था इतना सारा सब्जेक्ट पे कमांड करना बहुत मुझे डिफिकल्ट लगता था। ऐसा लगता था कि ये पढ़ रहे हैं तो ये भूल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं तो ये भूल रहे हैं। तो आपको भी ऐसा फील हुई थी क्या?
हाँ जी बिल्कुल, ये सबको होता है क्योंकि सब्जेक्ट इतने या सारे होते हैं। तो हम हर समय हर सब्जेक्ट को कमांड नहीं कर सकते, मतलब एक कर लिया फिर हम दूसरा तीसरा करेंगे तो पहला भूलते रहते हैं। तो इसलिए जैसे कि मेरे भी 12 सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने ज्वाइन करी थी कोचिंग आई गेट भिलाई, जो कि भिलाई में कोचिंग है सीएस के लिए। तो वहाँ पे जो सिद्धार्थ सर जो डायरेक्टर है वो पढ़ाते थे हमें। तो जैसे वो लोग बोलते थे हमें कि ये कहते हैं, जैसे तुमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, अब तुम आगे बढ़ रहे हो तो पीछे का रिवाइज करते रहो, उससे तुम भूलोगे नहीं। और बाकी तो टेस्ट सीरीज और जिनसे इनसे मेरा रिवाइजन होता था। जैसे कि मान लीजिए मैं कभी कुछ टॉपिक भूल गया हूँ या इस तरह की चीज, तो मैं टेस्ट दे देता था, तो उससे मेरा काफी बार रिकॉल हो जाती चीजें। और बाकी तो उनकी वीडियोस रहती थी पूरा, तो ये कि रिवीजन करते रहो, उससे भूलोगे नहीं। या या सो टेस्ट सीरीज इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कभी आप कोई भी कंसेप्ट को भूलोगे नहीं। जैसे कि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन जब करते हो तो डीए से अगर ग्राफ पढ़ रहे हो तो डीपी भूलने लगते हो, डीपी पढ़ रहे हो तो कुछ और भूलने लगते हो। तो मैं कभी भी रिवाइज नहीं की, मैं पर्सनली बताती हूँ, मैं अपने लाइफ में कभी भी किसी भी टॉपिक को रिवाइज नहीं करी थी। इसका मेन रीजन ये था कि मैं टेस्ट हर हर एक वीक में मैं 2-3 टेस्ट देती थी। टेस्ट मतलब ऑनलाइन कॉन्टेस्ट या कोई भी कॉन्टेस्ट। और जब कॉन्टेस्ट ऑफ दोगे ना तो आपको लाइक अगर आप एवरेज आउट करो ना तो एक मंथ में आप सारे चैप्टर को एक बार आप रिवाइज कर ही लेते हो, अगर आप एवरेज मैनर में देखो तो यही टेस्ट सीरीज देने का एक और बड़ी बेनिफिट है। एक तो आपको एग्जाम पीयर खत्म होता है, एग्जाम पीयर होता है खत्म। एंड दूसरी बेनिफिट होती है कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है। या सो यू हैव शेयर्ड रियली ग्रेट एडवाइस. So one thing I want to ask here, like joining any coaching is important. Like someone, if some person wants to do preparation by themselves, like doing some YouTube video or following some YouTube video. So आपको क्या लगता है कि अगर कोई आप कोई कोचिंग ज्वाइन करे हो तो कोचिंग ज्वाइन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सिंपल सेल्फ स्टडी से भी गेट क्लियर किया जा सकता है? सिंपल से कर सकते हैं clear, लेकिन जैसा मेरा मानना है कि अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट अ वेरी प्रिसाइज सिलेबस। यू हैव टू डू दैट ओनली सम 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन। ओके, सो अगर उतना ही करेंगे तो सफिशिएंट है। अब यूट्यूब से या किसी से मान लो गाइडेंस नहीं होती, तो गाइडेंस की वजह से बहुत दिक्कत आती है। उनकी गाइडेंस नहीं होगी तो वो कुछ भी करेंगे जो कि शायद इंपॉर्टेंट ना हो सिलेबस में है। मे बी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू इन एग्जामिनेशन, बट इट इज इन द सिलेबस। सो गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, जो कि हमें कोचिंग से ही मिलती है। बाकी तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यूट्यूब से, लेकिन कोचिंग हम करते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में हम कर सकते हैं जल्दी। या सो गाइडेंस इसके साथ साथ आपको लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगी। जैसे कि मैं कोचिंग में अपने लाइफ में बस एक टाइम करी थी फॉर जेई प्रिपरेशन, एंड मैं कोटा से कोचिंग करी हूँ। तो वहां पे क्या होता था कि जैसे ही कोई डाउट होती थी तो आप डायरेक्ट वहां पे आप लाइव किसी टीचर से पूछ सकते हो, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। तो मैं अभी बहुत सारा क्वेश्चन और पूछने वाली हूँ, लेकिन आगे का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। अभी न्यूटन स्कूल का अप्रैल बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक लिंक फॉर ज्वाइनिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंटरशिप एंड प्रॉपर गाइडेंस विद लाइव डाउट सॉल्विंग आपको यहाँ पे मिलेगी। Yeah. So now I want to ask a very important question. Like lots of students are preparing for GATE and different competitive examination. So what are some 3 advice you want to give them? Just one advice is start early. Like it's a very big advice. Start early. And Yes, second advice is do revisions, multiple revisions. correct. Because if you don't do the revision, you will forget everything. It's a deal. You will forget everything. After 1 month, 2 months, you will forget what you have revised, what you have learned. And third thing is use test series. Give test series. Give test as many as possible you can. So these are the 3 Yes. main things which I had done and I have achieved 90 rank. Yeah. So this is really great advice. And मैं ये क्वेश्चन थोड़ा पहले पूछना चाहती थी लेकिन अब मैं थोड़ा लेट से पूछ रही हूँ। सो ये क्वेश्चन ये है कि अभी आप आईआईटी लाइक आप गेट का प्रिपरेशन करें फॉर एमटेक। सो अभी आप एमटेक करोगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो गए आईआईटी के। आप कैसे डिसाइड करोगे आपको कौन सी आईआईटी चूज करनी है? जैसे गेट के बाद हमें बहुत सारी मिलती है अपॉर्चुनिटीज। यू कैन गो फॉर पीएचडी जॉब्स, यू कैन अप्लाई फॉर एमटेक इन टॉप आईआईटीज एनआईटीज और टॉप टायर 1 कॉलेजेस व्हिच Yes. इज द ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट। एंड और मैनी कॉलेजेस, फॉरेन कॉलेजेस आल्सो। सो जैसे कि अब मेरा 4th ईयर है अभी, तो अभी मतलब 1 साल प्रिपरेशन बचा है मेरा। तो इस साल शायद थोड़ा कोडिंग में फोकस करूंगा, और क्योंकि आई हैव सिक्योर्ड 90 रैंक, सो मे बी आई कैन फोकस ऑन कोडिंग आल्सो। इट इज रिक्वायर्ड इन आईआईटीज। I have listened, it is requiring IITs, and for the choosing part which IIT choose, or so I have not decided right now. I will decide in 4th year only Yeah. after second attempt.
Yes, yes. So you will take second attempt also. Yes, Yeah, so I think the best now you of will get the best of two a top 10 rank. Yeah. So maybe. one thing I want to ask, like lots of students used to think like there are no government job or PSU related to computer science department. Like I am from ECE and मेरे टाइम पे क्या होता था, बहुत लोगों को लगता था ECE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बहुत सारे PSU जॉब है लेकिन CSE में नहीं है। लेकिन अभी आप जस्ट बोले हो कि PSU भी मिल सकती है गेट के प्रिपरेशन से, तो आप कुछ PSU का नाम बता सकते हो जो कि गेट प्रिपरेशन से लेती है, गेट There के are स्कोर से many लेती है? PSUs. There are many PSUs like IOCL, CIL, ONGC, many PSUs. I don't remember right now. I just forgot. But there are many PSUs which you can go. Yeah. And Uh, it is a myth. Yes. I think it is a myth. When I was in third semester, I just asked one of my senior. I don't take the name. So he just told me that don't do GATE. It is just to become a professor. You know. So yeah, I maybe also I think think like that. Yeah. yes. So maybe I think that many students don't know the opportunities they will get after they will clear GATE exam. This is the main thing. Student maybe don't start preparation. So they should search first and then start. And I just Yeah. say that they will get a lot of opportunities. Yes. So like after doing GATE, you can get even opportunity for applying for different PSU, and of course बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम जॉब होता है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप गेट के थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो। रिसेंटली मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने एक लिंक्डइन पे मैं किसी पर्सन से मैं बात करी थी, ही इज वर्किंग एट सेबी। सेबी समथिंग लाइक आप लोग जानते होंगे स्टॉक मार्केट में हो गए तो। एंड वहां पे एक जैसे जितना फैंग कंपनी को जितना पे मिलती है उतना पे भी मिल रही थी। एक और मिथ है कि गवर्नमेंट कंपनी में, हाँ बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी कंपनी है जो कि इवन इंजीनियर को 30-40 के ही देती है, मतलब ज्यादा अच्छा पे नहीं देती है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कंपनी ऐसी है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा पे मिलेगा, अराउंड 1 लाख आपको पर मंथ पे मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ सेबी का, तो आप इवन गवर्नमेंट जॉब में अच्छा पे के साथ काफी अच्छा जॉब भी ले सकते हो, एंड उनका भी जॉब थ्रू गेट ही लगा था। सो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। So with this note, I want to in this video, and I also want to thanks again Ananya for accepting my invitation for this podcast. So अगर आप अभी तक वीडियो देखते आ रहे हो तो please like this video and subscribe this channel. So that's all about this video. Thank you so much. Bye bye.